इंडिया शुड नॉट बी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। इंडिया में एप्पल खूब बन रहा है, पर हम लोग क्या पैसे बना रहे हैं? हम तो असेंबल कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे। मैं आपकी जर्नी की बात करूं, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? When we started HCL, इंडिया में सिर्फ 100 कंप्यूटर थे। You had to get a license to make a computer. हम जब गवर्नमेंट के पास गए तो उन्होंने भगा दिया, कहना आपको तो हम लाइसेंस नहीं देंगे। You don't have the capability. We had to actually create the market. Our hardware was 18 times the price of an ambassador car then. So the first EMI in India was created by HCL. 6 लोगों में सबने एकदम ही छोड़ दिया, कहीं डर नहीं लगा। You know, if you create fallbacks, you never fail. आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो फेल, remove the sale. Everybody was on fixed and variable side. Every human being in the company. Every human being. Everybody. लगता था कि भाई अगर मैं अपना टारगेट नहीं अचीव करूंगा तो मैं तो अपना EMI नहीं पे कर पाऊंगा। अभी नारायण मूर्ति ने बोल दिया 70 hours of working। वो पूरा हल्ला मच गया। यूरोप को देख, वायर देयर इकोनॉमी इंडोल्ड, काम ही नहीं करना चाहता। आप देखो इटली में जाओ, सब लोग बाहर बैठे होते हैं, छोटी छोटी टेबल्स पे कॉफी पी रहे होते हैं, 1:30 बजे से 4 बजे तक कुछ काम नहीं करते। सर्टेन फैक्ट्रीज क्लोज ड्यूरिंग ऑगस्ट। लेट दीस कैरेक्टर्स वर्क फॉर 4 days. We should work for 6 days and take over them. You need to just keep on thinking family and life and this and that. I don't think you can succeed. The bets that the Tatas and the Vedantas and the Andanis and the Ambanis are taking on semiconductor and electronics, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसी लेवल पे रह जाएगी या ये नीचे आएगी? मतलब छोटे मैन्युफैक्चरर्स, एंटरप्रेन्योर्स भी इसका फायदा उठा पाएंगे इस इकोसिस्टम का? हाँ, डेफिनेटली, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ opportunity that will come up. Okay. Because one of the areas that I am very clear about is that India should not be just a manufacturing country. Correct. India should be a product country. वहाँ वैल्यू है। ये आई थिंक लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं कि भाई आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वर्सेस प्रोडक्ट कंपनी है, तो आपके दिमाग में क्या फर्क है? मतलब इन दोनों मार्जिन्स है चीज सेम? मैन्युफैक्चरिंग में आप कंपोनेंट्स बना रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में तो आप सिर्फ असेंबल कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हम लोग। करेक्ट। मेनली इट्स असेंबली। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो आपका वैल्यू एडिशन क्या होगा? 5%, 10%। But moment you get into a product situation, and if you design your own product, make your own product, your margins will go to 40%. And that is where you feel that India needs to India should move to be a product nation. Right. As the Western world has been enjoying that. Yeah. So, I mean, look at Apple. India में Apple खूब बन रहा है, पर हम लोग क्या पैसे बना रहे हैं? हम तो असेंबल कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, छोटा स्टफ कर रहे हैं। नंबर्स बड़े बड़े हैं, स्केल बड़ा है, वॉल्यूम बड़ा है। But is that the journey typically a country's ecosystem around manufacturing start? There's no harm in starting. There's no harm, right? What you're fundamentally learning is scale. Yeah. Which is not bad at all. As China did. But over a period of time, very quickly you need to go to become a product nation. You need to work on design. You need to work on value addition. You need to create an ecosystem where components are available in India, which has not happened today. So is it a mindset issue, resources, government, like where is it? There are so many issues. It's a very complex issue. Complex issue. The basic thinking needs to change. Yes. And even the government is, if you look at the PLI schemes, they encourage volume, they encourage value, but they don't encourage design. आज तो फिर भी इतना बड़ा अवेयरनेस है, इकोसिस्टम है, लेकिन अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं, 1976, हाँ, तो तब तो किसी को कुछ भी नहीं पता था। कुछ नहीं पता था। तो ये हिम्मत कैसे आई? मतलब मैं तो आज भी सोचता हूँ, ऑफ कोर्स आई हैव seen my father also, started something, shut it down, started again, shut it down, third time got lucky, and then never looked back. But that was also 88. तो उससे भी करीबन 15-1 साल पहले की स्टोरी है। तो वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं था। तो कैसे, मतलब how did it all start? देखिए, when we started HCL, इंडिया में सिर्फ 100 कंप्यूटर थे। पूरे हिंदुस्तान में 100 कंप्यूटर, like counted 100 कंप्यूटर। Wow. तो हमने कहा भैया जरा, यहाँ की तो पॉपुलेशन तो उस टाइम 700 मिलियन होगी करीब। हाँ, तो 600-700 मिलियन। तो अगर 100 है और पॉपुलेशन इतनी बड़ी है तो मार्केट तो है। सो इट मेक्स सेंस। तो मतलब एक
सोची समझी स्ट्रैटेजी, Oh, मार्केट yeah. एनालिसिस, Yeah. और उससे पहले आप लोग काम कर रहे थे सब लोग हम साथ तो में? सारे के सारे डीसीएम में काम करते थे ना, तो वहाँ Correct. हमने ये सारी बिजनेस शुरू की हुई थी। हाँ, वहाँ काफी थिंकिंग हमने करी हुई थी। ओके, तो उस थिंकिंग को लेके हमने शुरू किया कि भाई वहाँ तो हमें कुछ, वी वर अ स्मॉल फ्राई विद इन द बिग डीसीएम कंपनी। करेक्ट। हम लोग तो थर्ड डेसिमल प्लेस में भी नहीं थे। तो मतलब किसी ने आपको आके बोला कि भाई ये करना चाहिए, या एक कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, किसी कस्टमर से इंटरेक्शन हुई, कहीं मार्केट में नहीं देखा? ऐसा नहीं हुआ। क्यों? वो इसलिए हुआ कि जब हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो उसका एक रीजन था। वो रीजन ये था कि हम लोग जब डीसीएम में काम कर रहे थे सब लोग, तो हम लोग बहुत सारी चीजें करना चाहते थे। ओके, और हम डिफरेंट स्पीड पे करना चाहते थे। ओके, और वो हमें विद इन अ लार्ज कंपनी लाइक डीसीएम वो हमको मिलता नहीं था। मतलब उनके सेट प्रोसेस होंगे, बड़े उससे बड़े बाहर थे, जाना मुश्किल बहुत था। बड़ा कंपनी था। हाँ, वो कह रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स इज लाइक अ हॉबी। अच्छा, हाँ, तो वो हॉबी में तो कोई फायदा नहीं है ना। सो Correct. देन वी रियलाइज वेरी क्विकली दैट आफ्टर हैविंग वर्क दैट 3, 4, 5 years वी रियलाइज कि भाई ये तो सिर्फ हॉबी ही रहेगा, हाँ, ये आगे नहीं बढ़ने वाला। क्योंकि जब तक इसमें पैसा नहीं डलेगा, रिसोर्सेज नहीं डलेंगे, ये आगे नहीं जाएगा। करेक्ट, दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। बट देन घर वालों ने कभी ये नहीं बोला कि भाई अच्छी खासी नौकरी है, एचसीएल मतलब डीसीएम जबकि एक बड़ा नाम है, काफी रिस्पेक्टेड नाम था, लोग तो फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी, फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी, और मुझे जहां तक याद है कि उस जमाने में लोग पढ़ते इसलिए थे कि नौकरी लग जाए, हाँ, इसलिए नहीं पढ़ते थे कि जॉब करें, मतलब अपना काम करेंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो हाउ डिड यू चैलेंज दैट? सो ऐसा है कि भाई देखिए, मैंने तो किसी से पूछा नहीं। अच्छा, आपने पूछा ही नहीं? ठीक है। आई सेड यार देखो, आई एम 25 years old, हाँ। nothing to lose, Nothing to lose. so let's get started. So we were all young, Hmm. and we said okay, let's get started. That's how we got into it. And I just sent a letter. Those days calling anybody was so tough. Yeah. So I sent a letter to my brother to say this is what I'm doing. So अच्छा, he rang me back. हाँ, बिल्कुल करो। अच्छा, तो then I went home to Jabalpur and I told my mother and father कि भाई मैंने तो ये कर दिया। हाँ, तो वो लोग तो बोले अरे बाबा क्या करते हो तुम, why did you do this, ये वो। Then my brother supported me. I said नहीं इसको करने दो, he's young, let him do. तो फिर मेरे पेरेंट्स बोले कि ठीक है, अब तुमने सोच लिया है, तुमने तो ऑलरेडी रिजाइन कर दिया, हम क्या बोल सकते हैं। अब तो गाड़ी निकल गई। निकल गई। सो उसी चक्कर में हमने शुरू कर दिया। एंड देन आई सेड के मैंने अपनी मदर को, फादर को बोला मेरे पास तो पैसे ही नहीं है शुरू करने के, आप कुछ दे सकते हो तो बड़ा अच्छा होगा। तो आई ओनली वर्क फॉर 3 years, आई डिडंट इवन हैव एनी सेविंग्स। 600 रुपए की सैलरी पे काम करते थे हम डीसीएम में, तो मुश्किल से कुछ उसमें बचता तो बचने का सवाल ही नहीं पैदा था ना। तो आपकी शादी हो गई थी? नहीं। सो फिर मैंने अपनी मदर को बोला, फादर को बोला। हाँ, तो फिर सेकेंड डे माय मदर सेड के ठीक है, हमने एक प्रॉपर्टी बेची थी, हाँ, उसमें से कुछ पैसे मिले थे, हाँ, तो वो मैंने संभाल के रखे हुए हैं। अच्छा, तो वो 11,000 रुपए थे, बहुत बड़ी रकम थी, बहुत सब? बड़ी रकम थी। तो हमने कहा दे दो, कहते तुम ले जाओ। अच्छा, उससे हमने बिजनेस शुरू किया। वाओ, Actually, between the 6 of us, we put together 1.8 lakhs. that's it. That's it. But at that time, today's term, it will be in Yeah, crores. so 1.8 lakh से शुरू किया था हमने। और उन दिनों तो कुछ भी नहीं होता था। There's nothing called angels, VCs, nothing. And to start a business like a computer business was very tough, because you had to get a license to make a computer. You needed a license. अच्छा, तब तो लाइसेंस राज था हर चीज लाइसेंस पे। राज था। तो वो लाइसेंस के चक्कर में हमने हम लोगों को पता करना पड़ा लाइसेंस कैसे लिया जाए। तो हम तो छोटी सी कंपनी थे, हम जब गवर्नमेंट के पास गए तो उन्होंने भगा दिया, कहना आपको तो हम लाइसेंस नहीं दे सकते, यू डोंट हैव द कैपेबिलिटी, यू आर टू स्मॉल। ओके, सो देन वी स्टार्टेड अ लिटिल मार्केटिंग कंपनी, और हमने बोला कि थोड़ा कैश फ्लो क्रिएट करते हैं। सो वी वेंट एंड बॉट कैलकुलेटर्स फ्रॉम 2-3 sources, and one major source was Televista. We picked up Televista, we started marketing it, we created छोटा offices in 5-6 cities. मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए कैलकुलेटर्स के टू अर्न कैश फ्लो एंड अ कंपनी प्रोफाइल। राइट। और फिर हमने अपना एक ब्रांड क्रिएट किया 6 महीने बाद। और उस ब्रांड को क्रिएट करने में हमने एक मैन्युफैक्चरर से कैलकुलेटर्स खरीद लिए और अपने ब्रांड पे बेचने लगे।
ओके। सो उस तरह से हमारी कैश फ्लो से कहानी शुरू हुई। और जब व्हेन वी वर यू नो कमिंग टू अ सिचुएशन अबाउट 6-8 months इनटू दिस, तो हमने सोचा अब तो लाइसेंस तो किसी तरह करना ही चाहिए ना, बिकॉज विदाउट दैट हमारा ड्रीम ही नहीं ट्रू होगा। करेक्ट। एंड आवर ड्रीम वाज दैट उन दिनों माइक्रो प्रोसेसर्स आ ही रहे थे पहली बार, तो हमारा ड्रीम ये था कि एक माइक्रो प्रोसेसर लेके कंप्यूटर बनाना है। ये ड्रीम था, ये हमारा ड्रीम था। सो हम लोगों को लाइसेंस के लिए क्या किया जाए, तो हम लोग घूम रहे थे, इधर उधर बातें कर रहे थे। लोगों ने बोला ऐसा है कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को लाइसेंस दिए गए हैं, अच्छा, और उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज हैं उनके पास लाइसेंस पड़े हुए हैं, आप ट्राई करो। तो हमको यूपी में हम लोग पहुंच गए और उनसे बात करी कि भाई आपके तो पास ये तो लाइसेंस है। डीसीए में आप कहाँ थे, किस जगह पे थे? सी हेडक्वार्टर तो दिल्ली में ही था। दिल्ली था। हाँ, पर हम लोग तो सारी कंट्री में लोकेटेड थे ना, एक कहीं था, एक कहीं था, एक कहीं था। अच्छा, ये 6 लोग कहीं ना कहीं इधर उधर थे। तो कॉमन थ्रेड क्या था? सेम कॉलेज? नहीं, कॉमन थ्रेड तो डीसीएम ही था ना। अच्छा, कॉमन तो थ्रेड। हम लोग आप मिले ही डीसीएम में? मिले ही डीसीएम में। अच्छा। सो वहां से हमारी कहानी शुरू हुई और हमको पता चला कि यूपी में लाइसेंस है। तो वी वेंट टू यूपी गवर्नमेंट एंड वी सेड आपके पास तो लाइसेंस है, वी हैव नॉलेज ऑफ हैविंग क्रिएटेड दिस बिजनेस इन डीसीएम, हम आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। ओके। सो करते 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 वी डिसाइडेड टू फॉर्म अ जॉइंट सेक्टर कंपनी। सो दे टुक 26% इक्विटी और बाकी हमारा था। गवर्नमेंट टुक इक्विटी? हाँ, और उसमें एक फायदा हमको ये हुआ, बहुत बड़ा फायदा हुआ, वो ये कि हम अपनी कंपनी का नाम जो है वो बड़ा रखना चाहते थे। वी वांटेड टू लुक लार्जर देन लाइफ। सो अगर अब उन दिनों तो हमारे कंपनी का नाम था माइक्रोकॉम। अब माइक्रोकॉम तो बहुत लोगों को प्रोनाउंस ही नहीं करते बनता था उस जमाने में। उस जमाने क्योंकि हमने उसका शॉर्ट फॉर्म लिया था माइक्रो कंप्यूटर का, बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर। करेक्ट। तो हमने इनसे बात करी और उन्होंने बोला देखो हम अपनी कंपनी का नाम हिंदुस्तान से शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि भाई इंडिया की कंप्यूटर कंपनी है, हिंदुस्तान जरूर होना चाहिए उसमें। करेक्ट। सो उन दिनों हिंदुस्तान नाम मिलता नहीं था छोटी कंपनीज को, बट सिंस वी वर पार्टली गवर्नमेंट वो हमको मिल गया। और जब हमने उसका नाम शुरू किया तो हमने कहा वी विल कॉल इट हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। राइट। दैट्स व्हाट बिकेम HCL। यस। एंड हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड के नाम से हमको बहुत फायदा हुआ। वो नाम से फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ, क्योंकि जब हम कार्ड देते थे किसी को भी, किसी कस्टमर से मिलने जाए और उसमें हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ यूपी गवर्नमेंट, तो हमें एंट्री बड़ी इजीली मिल जाती थी। करेक्ट। और पब्लिक सेक्टर में तो और ही जल्दी मिल जाती थी। तो ये एक सोची समझी प्रोसेस थी या ये एक डिस्कवरी थी कि भाई? नहीं, ये सोच के हम लोग ने किया था कि भाई इनका फायदा मिलेगा। हिंदुस्तान नाम हम लोग ने दिमाग में लगाया था कि भाई एक तो हम इंडियन कंपनी बना रहे हैं और दूसरा हिंदुस्तान नाम होगा तो हमें बहुत फायदा होगा। करेक्ट। और वो इट प्रूव टू बी करेक्ट, बिकॉज एज वी स्टार्टेड गोइंग टू मीट कस्टमर्स, लोग हमको एंट्री बड़ी इजी मिलती थी। किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाइए, IIT में जाइए, कहीं भी जाइए, तो हिंदुस्तान नाम से बहुत फायदा होता है। लेकिन मैं कई बार सुनता हूँ जो आजकल लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं, एक वो मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट है कि दे आर इन अ जॉब एंड देन दे स्टार्ट वर्किंग समवेयर एंड देन स्लोली जब लगता है कि गाड़ी चल पड़ी है तो वहां से रिजाइन करके आ जाते हैं। और ये आज का नहीं, मैंने काफ़ी, अगर मैं अपने फादर की बात करूं, जर्नी की बात करूं, तो उनको भी जहां वो काम कर रहे थे उनको लगा कि चलो मुझे शाम को वक्त है तो मैं अपना एक शुरू करूं अपना काम। तो आप 6 लोगों में सबने एकदम ही छोड़ दिया, तो देयर वाज नो कैश फ्लो आउटसाइड ऑफ द मनी दैट यू हैड। करेक्ट। तो कहीं डर नहीं लगा? जैसे आज लोग जो है वो डरते हैं इसी वजह से कि भाई अगर नहीं चला तो क्या होगा। देखिए, we always had this concept in our mind that when you are young you don't have fear. When you are young you don't have fear. When you get older, शादी हो गई, EMIs आ गई, ये आ गया, वो आ गया, तब वरी करने लगता बंदा। तो बेड़ियां लगती जाती हैं। आप अपने छोटे उम्र में शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या रिस्क है आपके। हमने सोचा भाई अगर हमको DCM में नौकरी मिल सकती है एट दैट एज, एट दैट दिस थिंग, तो हम कहीं भी मिल सकती है। तो अगर ये नहीं भी चला तो वापस चले जाएंगे, कहीं जॉब ले लेंगे। नथिंग टू लूज। तो जॉब में काम करते करते कई बार लोगों को एक कंफर्ट आ जाता है और एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो है वो तो एक जद्दोजहद का माइंडसेट है। बिल्कुल। तो उस पूरे माइंडसेट से कैसे ड्रिफ्ट आप लोगों ने किया और आपको क्या लगता है कि आजकल जो आप
आई एम श्योर यू आर आल्सो अ वेरी सक्सेसफुल इन्वेस्टर, तो आप देखते हैं आज एंटरप्रेन्योरियल जो इकोसिस्टम है तो उसमें लोग काफ़ी इस चीज़ में फंस जाते हैं कि वो करना तो अपना काम चाहते हैं लेकिन तरीके उनके जॉब वाले ही हैं। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा और आज जो आप देख रहे हैं, तो हाउ हैज़ दिस होल इकोसिस्टम इवॉल्व्ड इन अराउंड एंटरप्रेन्योरियल कल्चर एंड माइंडसेट? देखिए ऐसा है कि इनिशियली तो देयर इज अ इशू इन योर माइंड कि भाई मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट यू नो दैट इज अ हम्प, यू नीड टू क्रॉस दैट हम्प के भाई मतलब एक हम्प है, इट इज नॉट अ बिग डील, उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ो। और जब आगे बढ़ना शुरू होते हैं तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रहता आपके पास, देयर इज नो फॉल बैक। सो यू नो इफ यू क्रिएट फॉल बैक्स यू नेवर सक्सीड। So you know, you know, it's like you know the circus. Circus में आप देखेंगे वो जो लोग ऊपर से लटके होते हैं उसके नीचे एक जाल पड़ा होता है। करेक्ट। अच्छा, वो जाल है तो वो करते रहते हैं, और जब जाल निकाल दोगे तो वो घबरा जाएंगे कैसे करने का। तो इसकी मैंने एक स्टोरी सुनी थी, वो एक सॉफ्टवेयर की स्टोरी, कंपनी की स्टोरी थी, इंटुइट करके। बिल्कुल। उन्होंने बोला कि वी विल रिमूव दिस नेट, सेफ्टी नेट हम रिमूव कर देंगे। okay. आप प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि कभी फेल ही ना हो। बस अगर प्रोडक्ट ऐसा बनाओगे तो चलेगा बहुत बढ़िया। करेक्ट। तो उन्होंने एक होम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया। उन्होंने बोला लेडीज को अगर आप बोलोगे कि मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करो सॉफ्टवेयर के लिए, वो कभी नहीं पे करेगी, कभी नहीं करेगी। तो आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो फेल ना हो। रिमूव द सेफ्टी नेट। सो विच इज द वे you build your product. That's the way entrepreneurs should do. They forget about the safety net, get going, तो and take the risk. लेकिन मैं कई बार देखता हूँ, कई बार आज जो लोग हैं वो अपने प्रोडक्ट पे कम समय लगाते हैं, मार्केटिंग और सेल्स में बहुत घुस गए हैं। कि मतलब एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाया, उसकी थोड़ी सी वैलिडेशन हुई और एक स्पीड पे उसको बस ग्रो करने पे लग जाते हैं कि जल्द से जल्द आगे पहुंच जाएं और हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा दें इससे पहले कि कोई और घुस जाए। तो लेकिन अगर हम पिछले बिजनेसेस देखें, वहां पे एक स्टडी अप्रोच थी, तो वो अप्रोच रिडंडेंट हो गई है या ये इस जमाने के हिसाब से, या ये लोग कुछ गलत कर रहे हैं? देखिए भाई, आजकल इस तरह की चीजें ज्यादा हो रही हैं बिकॉज देयर इज टू मच मनी अवेलेबल। टू मच मनी अवेलेबल। तो क्या होता है कि पैसा है तो मार्केटिंग हो रही है, खर्चा करो। और उसमें बहुत लोग मर गए क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे वीसीज इतना पैसा दे दिए लोगों को इन द लास्ट 5-7 years that they were drowning in money and they didn't know how to use the money. They were not capable. I'm a case study there. They were not capable. You were probably capable. I see so many who were not capable. You know, and that is really where it's harmed that startup culture. There's too much money. So I think restricted amount of money that is available with clear benchmarks, clear tranches that are given to people based on performance, I think that's a much better model. तो क्या ये एक हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमी है कि मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल्स को लोग ओवरलुक कर जाते हैं, कंप्लायंसेस को? इज इट एजुकेशन? ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है हमारे स्टार्टअप कल्चर में। लोगों को कंप्लायंसेस के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। करेक्ट। और मैं बहुत सारे IITs और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में आई हैव सीन इंक्यूबेशन सेंटर्स, इतनी बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं। करेक्ट। पर उनको बिजनेस के बारे में नहीं आता कुछ। वो एक बहुत बड़ी वीकनेस है। करेक्ट। सो इंक्यूबेटर्स के अंदर दोनों तरह के लोग होने चाहिए जो उनको मेंटर करें। एक टेक्निकल मेंटर होना चाहिए और एक बिजनेस मेंटर होना चाहिए। और बिजनेस सारे एस्पेक्ट को देखे, नहीं आपका फाइनेंशियल, लीगल। मतलब मैं कई बार देखता हूँ एंटरप्रेन्योर से बात करता हूँ, उनको लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ने आते, कुछ नहीं पता, और ऐसे साइन कर जाते हैं फिर बाद में परेशान होते हैं। तो ये एक बहुत वीकनेस है। और तीसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ लोग एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ते नहीं है। हमारे यहाँ कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं? जी, वेरी फ्यू। एंड is there a college like Babson which is there in America which is only for entrepreneurs? Yes. उस तरह का कोई इंस्टीट्यूट है नहीं। In the last 4-5 years some of the universities have now collaborated with Babson, जिसमें उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किए हैं, बट वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर है।
it should be outside the university, where people who have just graduated can also go and learn to how to be an entrepreneur. वो हमारे यहाँ बहुत ही पुअर कल्चर है. तो मैंने जब IIT हैदराबाद शुरू करवाया था 2011 में, I told my director, I said, I don't want these guys to come out as nerds, and I don't want these guys to come out as people who want jobs. I want them to be job creators, and I want them to be well-rounded human beings. Right. So हमने उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल बनाया था, उसको हम लोग फ्रैक्टल्स बोलते थे. Okay. और उसमें हमने करीब 30 सब्जेक्ट्स ऐसे बनवाए थे, जिससे सब लोगों को उस 30 में से 4 या 5 सब्जेक्ट जरूर चूज करने पड़ते थे. और उसके लिए 1 क्रेडिट या 2 क्रेडिट मिलते थे, ज्यादा नहीं मिलता था. बट उससे क्या हुआ कि उनकी जो नॉलेज थी वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आई, नॉट जस्ट इंजीनियरिंग, बट दे लर्न ह्यूमैनिटीज, दे लर्न कि भाई एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, म्यूजिक क्या होता है, आर्ट क्या होता है, वो सारे हमने उसमें ऐड किए. और एक पैरेलल हमने सीक्वेंस बनाया जिसमें वी स्टार्टेड अ माइनर इन एंटरप्रेन्योरशिप इन द IIT. The first IIT and the last IIT to start a minor in entrepreneurship. Why would you call it last? किसी और ने मॉडल को emulate नहीं किया. It's a very good thing. हाँ. So what we did those days was unique. We started telling students कि भाई आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, वीकेंड में आप एंटरप्रेन्योर बनो. तो हम लोग जितने लोग, I started teaching there. I taught for 7 years. Oh, you started teaching also there. Because I said I will take the lead in starting this. I'll show the path. So I used to get them to understand why entrepreneurship is important. That was my agenda. So I used to tell them the HCL story, and I will tell them many stories, and I will tell them what is entrepreneurship, what do you need to know. And I used to tell them, भैया अगर आप entrepreneur बनना चाहते हो, सिर्फ product important नहीं है. Finance, accounting, marketing, ये सब important है. Training, L&D. तो, हाँ, तो हम लोग ने सब, what we did was that we got practitioners, entrepreneurs to come and teach there. And it's been a very successful program. It's been a very successful program because people have got major in mechanical engineering and minor in entrepreneurship. तो जब आप इस माइंडसेट से वहाँ गए और आपने इस माइंडसेट को कैरी किया, जो आपने सीखा अपनी अर्लियर जर्नी में, तो उसमें एक कल्चर वर्ड आता है जो लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं. मतलब कई लोग उसको यूनिफॉर्म से अटैच करते हैं, कई लोग उसको समय पे आने से अटैच करते हैं, कई लोग उसको वाइब्रेंसी से अटैच करते हैं, कई लोग उसको डिसिप्लिन से करते हैं. तो आपके दिमाग में कल्चर की डेफिनेशन क्या है और आपने किस तरह का कल्चर बनाया, और आज जो आपने ये कंपनी खड़ी करी तो आज उसका कल्चर इवॉल्व हुआ है, चेंज हुआ है, कैसे उसमें वो प्रिंसिपल्स छोड़ के आप आए हैं? A very important point you are making because जब हमारी कंपनी छोटी थी जी, तो क्रिएटिंग अ कल्चर बड़ा इजी होता था, क्योंकि यू नो एवरीबॉडी, हाँ, लोगों को जानते हैं ये सही है, गलत है, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा. सो उस तरह से वो कल्चर सेट होता गया. अब जब कंपनी 500 से 1000 लोग बने, फिर 1000 से 3000, 3000 से 10,000, तो उसको कल्चर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है. और उसके लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजीज ढूंढनी पड़ती हैं और कुछ इस तरह के इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बनाना पड़ता है, बेस्ड ऑन विच दैट कल्चर सॉर्ट ऑफ स्टेज. इट नेवर इज स्टैटिक. कल्चर इज नॉट स्टैटिक. थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा ही आएगा समय के साथ, लोगों के साथ. हाँ, लोगों के साथ. तो और लोगों की एस्पिरेशंस के साथ. यंगस्टर्स हैव अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट पीपल. Correct. Older people have a different way of looking at it. So what we did was that we created a culture of in a manner, a family culture. Where family culture. हाँ, family culture. Very strong family culture. So each unit was created as a profit unit. So first of all, हमारे within our company initially there were 5 to 6 different profit centers. Okay. हमने each profit center के बंदे को CEO बना दिया. अच्छा. CEO of that unit. हाँ, यूनिट. एंड हमने उसको बोला कि आप P&L बैलेंस शीट मैनेज करिए. तो एक तो हमने उनको बिजनेस सिखाया और दूसरा हमने उनको एक इस तरह का कल्चर शुरू किया जिसमें वो प्रॉफिट की तरफ देखते थे कि भाई प्रॉफिटेबल होना चाहिए हमें. और उसके बाद हमने क्या किया कि विद इन ईच ज्योग्राफी वी क्रिएटेड
business entity managers. Okay. Each of them were called business entity managers. Okay. They were not called regional managers, which are typical organization does. तो हमने उनको ये सिखाया कि आप अपने बॉम्बे में आपको प्रॉफिट बनाना है। बॉम्बे का रेवेन्यू, बॉम्बे का बिजनेस आप पे डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आप अपना पीएनएल प्रेजेंट करिए। करेक्ट। तो उससे क्या हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन से एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी। ये बहुत ही फॉरवर्ड थिंकिंग है उस समय के हिसाब से, क्योंकि एक ग्राउंड लेवल, रीजन लेवल पीएनएल अकाउंटेबिलिटी जिसकी कि लोग आज बात करते हैं, या वेस्टर्न वर्ल्ड काफी टाइम से बात करता था, आपने उस समय उस चीज को इम्प्लीमेंट बहुत दिन पहले, करीब आई थिंक 25 इयर्स हुआ। वाह। सो उस तरह से हमने एक तरह से कल्चर बनाने की शुरुआत करी, और बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हुए, और उस तरह से वो एक हमारा जो बिजनेस था ना वो बड़ा टफ बिजनेस था, हार्डवेयर बिजनेस। हार्डवेयर बिजनेस में हम compete करते थे दुनिया भर के कंपनी से। करेक्ट। डेल है, HP है, सबके साथ। बट हमारा जो मार्जिन होता है उस प्रोडक्ट में बहुत कम था, क्योंकि हमारे पास वी डोंट मेक दोस कंपोनेंट्स व्हिच आर सारे बाहर से आते हैं, तो हमारा मार्जिन बड़ा लिमिटेड होता है। तो वी हैव टू वर्क ऑन लो मार्जिन, बट वी हैव टू डू वॉल्यूम। करेक्ट। यू डोंट डू वॉल्यूम, देन you don't make enough money. So that used to be the challenge. That means if you have low margin, you have to work on low overheads. That means you don't pay the highest salaries in the market. Correct. So what Dell or HP or everybody pays, हम वो नहीं पे करेंगे। Correct. तो वहाँ जो है कल्चर आपको हेल्प करता है। जो हमारा कल्चर ऐसा था कि हम लोग मीडियन में रहते थे, बीच में। ऐसा नहीं कि सबसे लोएस्ट थे, बीच में रहते थे। HP यहाँ बैठा, हम बीच में बैठे। Okay. And that is by choice. By choice. Because of the situation you were in. मार्जिन हमारी कम थे, बट हमने उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लगा दी कि everybody was on fixed and variable salary. Okay. Every human being in the company. Every human being. Everybody, not just salespeople. Okay. Accounts guys, everybody. So everybody was focused on delivering an outcome, keeping lower overheads, and everybody was focused on creating profit. Correct. It was not only the factory's responsibility. No. सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो उसमें क्या हुआ कि लोगों को काफी लगता था कि भाई अगर मैं अपना टारगेट नहीं अचीव करूंगा तो मैं तो अपना EMI नहीं पे कर पाऊंगा। करेक्ट। तो हमने क्या किया, शुरू में 80-20 किया, फिर 70-30 किया, 60-40 किया। इट इज अनहर्ड ऑफ। हाँ, सर्टेन एरियाज के 60 फिक्स कर दिया, 40 वेरिएबल कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि लोगों को बहुत दिमाग में आया कि भाई हमें तो अचीव करना ही है, अगर हम नहीं अचीव करेंगे तो हम अपना EMI कैसे पे करेंगे। तो ऐसे स्टेप लेने से आजकल एंटरप्रेन्योर्स घबराते हैं, तो लगता है कि लोग भाग जाएंगे। अरे बाबा, मैं कल ही किसी से बात कर रहा था एक स्टार्टअप के साथ, तो मैंने उससे बोला तुम्हारी सैलरी का क्या ब्रेकअप है? कहता है 80-20। मैंने कहा यार तुम 80-20 में सक्सीड नहीं करोगे, तुम में हिम्मत होनी चाहिए कि उसको 70-30 तो कर दो। एग्जैक्टली। तो अगर तुम उसको उसकी तरफ चलो तो सही। हाँ, because then they will really understand the value of creating a business. अदरवाइज ये लोग समझते ही नहीं है कि तो इस तरह से हमने ये कल्चर जो है, प्रॉफिट का कल्चर, वेरिएबल का कल्चर, अकाउंटेबिलिटी का कल्चर, अकाउंटेबिलिटी का कल्चर, उस तरह से हमने बनाया। आई विल टेल यू, आई लेफ्ट इन HCL in 2012. From 6 years before that, every year we were the best in terms of employee satisfaction. Wow. Why? We were not paying the highest salary, but we had a culture of performance. So salary is not the only. We had a culture. We used to have appreciation. We had a very different kind of culture. और हम उसको इस तरह से बोलते थे कि हमें कंपनी में प्राइड होना चाहिए। You must be very proud. You should feel happy. Yeah, that I'm working in HCL. Yes, pride of being HCL. So उस प्राइड के बेसिस पे हमने परफॉर्मेंस लाए, और उसके लिए हमने बहुत सारा काम किया कि किस तरह से इंडियन ब्रांड को आगे ले जाना। हाउ डू यू फाइट विद एन इंडियन ब्रांड अगेंस्ट अ फॉरेन ब्रांड। तो हमने एक कैंपेन शुरू किया, बड़ा इंटरेस्टिंग कैंपेन था, उसको हम लोग बोलते थे माइंड इंडिया। तो हम सबको बताते थे कंपनी में कि भाई इंडियन माइंड इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड,
because you go and see anywhere in the world, whether it is spelling bee or whatever, वो Indians are doing well. सब जगह है. इंडियंस आगे बढ़ते हैं. किस लिए हैं आगे? क्योंकि हमारा माइंड कुछ अलग ही है. So हमारा इंडियन माइंड इज फैंटास्टिक. So you played on that Indian mind. So we created a logo called Mind India. Okay. Which had the colors of the flag. And did it showcase in your business? Yeah, I'll tell you. And then inside that, we made it like a all the three colors of the flag going around the world. Okay. And it was a round little thing. Okay. And then what we did was that, just like cricket, we said, पहले तो इसको internally sell करना है. Correct. So we said, within the stadium, which was, you know, those days Saurav Ganguly had created this huddle inside the stadium. Correct. तो हमने कहा हम huddle करेंगे सबसे पहले. तो उस huddle में हम लोगों ने internal pride बहुत लाए. हमने कहा बोला हम लोग तो इतने अच्छा माइंड है हमारा, हम कुछ भी बना सकते हैं. So उस बेसिस पे हमने वो शुरू किया. Then we said let's take it to the stadium, which is customers. तो हम करीब 20-25 cities में जाके we chose people who were brilliant minds and we got them to come and talk in front of our customers to say how great the Indian mind is. Right. And then when I was finishing this thing in Bombay, I was standing outside and करीब 100-200 लोग आए हुए थे उस मीटिंग में. So customers जैसे बाहर जा रहे थे तो कहते यार कितना बढ़िया आइडिया है, देखो इन्होंने इतना सॉफ्ट सेल किया है, इन्होंने बोला इंडियन माइंड इतना अच्छा है तो इसका मतलब इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा. वो आपने एक सटल वे से एकदम सटल वे से किया. भाई इंडियन माइंड अच्छा, उसको तो कोई चैलेंज ग्लोबली नहीं कर सकता. सो अगर इंडियन माइंड इतना अच्छा तो इंडियन प्रोडक्ट भी अच्छा होगा. तो उस तरह से हम लोग करते थे. यू नो दीज आर ऑल थिंग्स टू क्रिएट कल्चर आल्सो. नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आई थिंक जो लिसनर्स हैं उनके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है. कई बार हम लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कंपटीशन की स्ट्रेंथ्स को देख के. जैसे ग्लोबल प्लेयर्स थे आपके सामने. correct. और हम ये भूल जाते हैं कि भाई हमें अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके उसको हाईलाइट और हीरो बना के हम उनको बीट कर सकते हैं. वी हैव टू प्ले टू आवर स्ट्रेंथ. या सो देन व्हाट वी डिड वाज दैट हम लोग ने डिसाइड किया कि भाई हमारे 3 या 4 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पीसी में. पीसी बनाते थे हम. इंटेल बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. माइक्रोसॉफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. हु मेक्स मनी वेल पीसी इज मेड माइक्रोसॉफ्ट एंड इंटेल. नोबडी एल्स मेक्स मनी. सो हमने बोला कि देखो हम इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों से अच्छा वार्तालाप करेंगे. सो वी वेंट टू इंटेल एंड सेड लुक यू आर टोटली डिपेंडेंट इन योर बिजनेस विद ग्लोबल ब्रांड्स. इंडिया, व्हाई डोंट यू क्रिएट एन इंडियन चैंपियन हु कैन help you to do business in India? Right. We are your gateway. We are your gateway. And they were also thinking the same at that time. It so happened. So they started looking at Indian champions everywhere. And we then did a deal with them, then said, okay, whatever price you give to Dell, you give to us. So उस basis पे हमने competitiveness लाए. लोगों में दम होना चाहिए मांगने का. अगर आप में दम नहीं है मांगने का ना, तो आपको कुछ पहले तो वो सोच, फिर वो दम, और अगर मना भी कर दे तो क्या फर्क पड़ता है. अब तो वैसे ही बैठे हैं. माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी यही किया. उनसे खूब सारा मार्केटिंग मनी लिया. उस पे बेसिस पे हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर सके. फिर एक टाइम आया जब बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो ये कि एक कंपनी थी इंडिया में पीसीएल करके. आपको याद हो? पटनी कंप्यूटर? नहीं, पीसीएल, परटेक कंप्यूटर. अच्छा, परटेक कंप्यूटर, वो हार्डवेयर बनाते थे. ओके. तो बड़े स्मार्ट कंपनी थी. ओके. तो उन्होंने क्या किया कि ओवरनाइट उन्होंने एक पीसी अनाउंस कर दिया जिसकी प्राइस हमसे करीब 4,000 रुपए कम थी. तो उसको बड़े बड़े फुल पेज एड्स आए, उन्होंने खूब बुकिंग्स करी और हमारा बिजनेस नीचे जाने लगा. राइट. तो हमने सोचा क्या किया जाए इसके लिए, इसको तो कुछ करना पड़ेगा. सो तब हमारा थोड़ा माइंड सेट चेंज हो गया कि अभी तक तो हम ग्लोबल ब्रांड से compete कर रहे थे, अब इंडियन ब्रांड हमको मार रहा है. करेक्ट. तो क्या करें. तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है. अच्छा, फिर देन वी डिस्कवर्ड कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी है. वी फिगर आउट दैट स्ट्रैटेजी. द स्ट्रैटेजी वाज दैट दे वर booking a lot of orders, taking 100% advance for the PC, but they were not delivering anything. Okay. And they were delaying the delivery by 2 to 3 months. Right. By delaying the delivery for 2 to 3 months, they were creating phenomenal cash flow.
Yes, and they were using that cash flow. For advertising. Advertising. And we also found out that they're using that cash flow to start a software company. तो हमने कहा अब ये कैश फ्लो के ऊपर हमें अटैक करना पड़ेगा. सो सबसे पहले हमने ये किया कि आई गेव अ चैलेंज. हम लोग ने एक टीम बनाई और ऑल ऑफ अस सैट टुगेदर एंड वी सेड कि भाई इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग को हमको बीट करना है. तो वो डिसीजन हमने ले लिया कि हम इस प्राइसिंग में को बीट करेंगे. ठीक है. सो वी आफ्टर हैविंग डिसाइडेड दैट वी लुक्ड एट एवरी कंपोनेंट एंड वी रियलाइज दैट वी हैव अ लॉट ऑफ ग्राउंड टू कवर, बट इट विल टेक अस 2 to 3 months टू गेट देयर. यस. हमने कहा कोई बात नहीं, हम लॉन्च कर देते हैं इस प्राइस पे, चाहे हमारी कॉस्ट उससे ज्यादा है. We will absorb the cost. Absorb for the moment, because time was very important. Correct. They were taking away business. तो हमने लॉन्च तो कर दिया उस प्राइस पे. और हमने एक बड़ी स्ट्रैटेजी बनाई कि जितना जब हम लॉन्च करेंगे ना, तो हम सारे के सारे जो पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स लेके आके प्रोडक्ट तैयार करके रखेंगे और फील्ड में डाल देंगे, डीलर्स के पास डाल देंगे ताकि डिले ना हो. डिले नहीं हो. तो हमने जाके हाथ के हाथ प्रोडक्ट. तो हमने बोला कि भाई वो तो 3-3 महीने आपको वेट करा रहे हैं, हम आपको एक्सटॉक डिलीवरी दे रहे हैं. Okay. Same price, less price than yours. So everybody started coming to us. Correct. Their business collapsed over a period of time. And in the meantime, I told my materials team that you work on the costings. So they did everything. They got the costings. And I've written about it in my book also, called Just Aspire, where we went to Microsoft and said, boss, आप हमारे बड़े पुराने पार्टनर हो, आपकी कीमत बहुत ज्यादा है, हम इस पे कम्पीट नहीं कर पा रहे. आप हमें ऐसी प्राइस दो जिसमें हम कम्पीट कर लें. मे बी थोड़े टाइम के लिए, लेकिन नहीं दो. So they said, sorry, this is too crazy. अच्छा. So we said, look, if you don't give us this price, we will go for an alternate operating system, which we have located in America, which is very cheap. And we'll have no choice but to remove Microsoft and put this. Correct. But I don't want to. ये कब की बात है सर? We are talking to in the somewhere around 2000 plus के बाद 2005. So in a manner I told them that look भैया, अगर आप agree नहीं करोगे तो मैं तो आपके साथ रहूंगा नहीं. So after the meeting, my materials guy came. इतने बड़े पार्टनर हैं हमारी, इतनी बड़ी कंपनी, और आपने उनको थ्रेटन कर दिया. मैंने कहा थ्रेटन नहीं किया, मैंने उनको एक ऑफर दिया है. सिचुएशन बताइए. हमने अपना प्रॉब्लम बता दिया, आप हमारे पार्टनर हैं, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करिए जी. तो दे सेड कि हम नहीं कर सकते. सो दे सेड ओके. काफी मैंने डिस्कशन किया, 2-3 घंटे चला. उसके बाद मैंने बोला ठीक है, आप गो बैक टू योर हेडक्वार्टर्स एंड चेक, बिकॉज बिफोर यू से एब्सोल्यूट नो, आई वोंट गो फॉरवर्ड. Within 1 week, they said yes. Achha, they gave us a solution. Okay. So, you have to have the guts to go and get it done. Yeah. And you have to take risks like this. Because unless you do everything in time, the critical aspect in business is GTM, which is go to market fast. No need to wait for every damn decision to be taken. Correct. You need to look at the time aspect. So I've always called it time and timing. Time to market and timing is when it should be marketed. So let us say it has to be marketed on Diwali. वो Diwali date आप miss नहीं कर सकते. Come what may. वो timing बहुत important है. But वो पता होना कि दिवाली है आपके बिजनेस में important. बहुत important. तो मैं सब जो फाउंडर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको ये टाइम और टाइमिंग के बारे में बहुत सिखाता हूँ. और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जरूर सिखाता हूँ, वो ये कि इफ यू आर अ सीईओ ऑफ अ स्टार्टअप, यू बेटर बी द बेस्ट सेल्समैन. वो स्किल इज अ मस्ट. उसके बिना आप सक्सीड नहीं करोगे. और इफ यू डोंट नो हाउ टू सेल, यू आर अ ग्रेट टेकी, गो टू अ स्कूल, लर्न मार्केटिंग, लर्न सेलिंग, एंड you'll be successful. तो यहाँ कई लोग इस कमी को पूरा करते हैं को-फाउंडर के साथ और एक पार्टनरशिप के साथ. कुछ लोग को मैं यही एडवाइस करता हूँ कि if you don't think you can learn how to sell, get a co-founder who's superb in selling. Right? He might not be the CEO, but he's superb in selling. In one particular startup, we managed to convince the founders
ओके कि भाई आप लोग के बस की बात नहीं है ये, हम एक अच्छा बंदा लाते हैं who will be the CEO, he's a great salesman, and he'll be a CEO founder with you, but he'll make your company. Correct. And actually that guy made their company. He did. They became $1 billion value company. Wow. So, you know, it's all about the leadership, the salesmanship, which is very critical. So in my book, I have a full chapter on salesmanship. Which is so critical, as you I say. believe it's the most critical skill that you should have. The leadership should have. But कई जगहों पे मैं देख रहा हूँ जो लोग पार्टनरशिप करते हैं, को फाउंडर्स आते हैं, माइंडसेट अलग होते हैं. भाई somebody has come to make money, कोई आया है नाम बनाने को, कोई आया है काम सीखने को. तो आप लोग 6 लोग थे, तो आपको कभी ऐसा चैलेंज महसूस हुआ कि भाई मेरी थिंकिंग मेरे पार्टनर की थिंकिंग से नहीं मिल रही, या मेरे ये जो पार्टनर्स हैं ये मेरे को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं? तो आप लोगों का जब ये जर्नी चली तो वहाँ पे डिड इट बिकेम अ रोड ब्लॉक और डिड इट बिकम अ स्ट्रेंथ कि हम लोग अलग सोचते हैं? Initially, I would say that we took a very clear decision right up front. Okay. That it will not be everybody is equal. There will be a leader. जैसे एक क्लास में शुरू होते निकलता तो एक ही टॉपर है. तो वो एक ही है. तो भाई शिव नायर was the leader in DCM. He will also be the leader in HCL. Okay. Simple decision. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं. अच्छा भाई हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, we'll have a discussion, but final call is his. He's the CEO. So इस तरह से you know you actually succeed. If you get into this situation that all of us are founders and everybody is equal, वो काम नहीं चलता. नहीं चलता. और उसमें इश्यूज जरूर आते हैं. ऐसा नहीं कि हमारे बीच में इश्यूज नहीं आए, बहुत इश्यूज आए. We sorted them out. When we couldn't sort out, some of the founders left. But so what? Company got set up. Correct. So business इंडिया से बाहर निकल के ग्लोबल भी हुआ आपका, करीबन 60 कंट्रीज तक गया. और ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है जहाँ पे आज की डेट में इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स घबराते हैं. नई कंट्री, नया कल्चर, नई लैंग्वेज, नए लॉज, मार्केट एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, इंडियन ब्रांड और कंपनी की रेपुटेशन, पोजीशनिंग कैसे हम ये करेंगे, वहाँ के टैलेंट को कैसे हायर करेंगे, उसमें वो कल्चर कैसे लेके आएंगे, या दोनों कंट्रीज़ में अलग कल्चर से सेम कंपनी कैसे चलाएंगे. तो आप लोगों को ये कब लगा कि अब भाई इंडिया तो हमने कैप्चर कर लिया है, अब बाहर जाने की ज़रूरत है, या उस बाहर जाने से इंडिया को भी हेल्प मिलेगी और बाहर बिजनेस भी बनेगा? तो ये डिसीजन कब लिया? We took a very early decision to go global. अच्छा. We were only 4 years old. 4 years old. मतलब 80s में आप लोग प्लान कर लिए? 1980. अच्छा. I and one of the founders, we went and set up our Singapore office. अच्छा. And that time the Singapore government was giving phenomenal incentives for people to set up manufacturing there. Right. And electronics was a favorite subject. Right. And computers was more a favorite subject. So we met them and they said, look, why don't you come and start a manufacturing company here, manufacture computers in Singapore. So we took our computers which were designed here and we took them to Singapore to manufacture and market. So very early days, we learned the whole benefit of going global. Because what we created initially, we used to, for some time, we even called it windows to the world. Windows to the world. So Singapore became our window to learn the global market. And I have a chapter on this in my book, which is called Windows to the World. Okay. And the window was based on one fact that you were competing with everybody there. You were working in a different culture. You were working in an environment which was not comfortable to you. But you had to succeed. So when we went there, we didn't have enough money. Again. हाँ, मतलब आप लोग तो अभी नए बिजनेस के लिए 4 साल की कंपनी थी हमारी. हाँ. तो उन दिनों आरबीआई पैसा ले जाने नहीं देता था. हाँ. और उन दिनों का तो वो चक्कर ये होता कि वो $8 मिलते थे आपको. करेक्ट. सो to go and set up a company in Singapore to manufacture computers was a huge task. But we decided to do it because we felt that we did some market research there first. And we figured out that
यहाँ पर एक बड़ी भारी देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, एंड दैट अपॉर्चुनिटी वाज दैट एवरीबॉडी वाज सेलिंग बॉक्सेस इन सिंगापुर। बॉक्सेस बोले तो प्रोडक्ट बेचते थे। अच्छा, प्रोडक्ट। आप कंप्यूटर ले लो। अच्छा। उसके बाद लोग क्या करते हैं उस कंप्यूटर के बाद, लोगों को पता ही नहीं था। अच्छा। सो व्हेन वी डिड दिस रिसर्च, वी फिगर्ड आउट के what people are looking for is not computers. What they are looking for is computerization. So we launched our company. Okay. With one strategy, which was we do not sell computers. We sell computerization. Full page ad. In Singapore. In Singapore. In those times. Those days. And we set up a software factory in Madras. So we would do system analysis in Singapore. We will send that back to Chennai, and software would be written there, and they would send it back to us. Okay. उन दिनों इंटरनेट नहीं होता था, कनेक्टिविटी तो नहीं था, कुछ नहीं था। कुरियर से आता था, कुरियर से जाता था। वो फ्लॉपी डिस्क। कभी कभी फ्लॉपी डिस्क खराब हो जाती थी जी, क्योंकि वो एक्सरे में डाल देते थे जी। तो ये सब चक्कर हमने देखा था। बट वी सक्सीडेड बिकॉज वी हैड gotten on to the right strategy. So when we found that to be extremely successful in Singapore, we replicated it in India. And we started giving people full computerization in India also. And that was hugely successful. Because we went to the first time user who had no experience. They didn't know what computers was. So we had to actually create the market. And when you create the market, you become a leader. You become a leader. You become a pioneer. Yeah. So that's how हमारा जो शुरू में हमने किया, और उसमें हमने नोटिस किया इंडिया में कि बहुत सारे मिथ्स थे. The first myth was that computer is difficult to operate. अच्छा, ये मिथ था उसमें. हाँ, डर लगता था लोगों को. सब लोगों को ही लगता था कि हम ले तो लेंगे पर ऑपरेट कैसे करेंगे. करेक्ट. इवन बिग कंपनी. हाँ, तो ये थॉट था उसमें. So some of the big companies were okay, but I would say small and medium is where we were looking at. So we came out with a full page ad which said even a typist can operate. Removing that myth. मतलब आपने बेंचमार्क ही इतना यहाँ ले आए. टाइपिस्ट चला सकता है आपका कंप्यूटर. तो फिर आप क्यों घबरा रहे हैं? हाँ, आप क्यों घबरा रहे हैं? तो इस तरह के हमने myths remove किए. Computer is very difficult. Computer is very expensive. It was very expensive. Our hardware was 18 times the price of an Ambassador car then. Right? Although our margins were 70-80%. Wow. But we needed that money to market. 18 times the Ambassador car, which was the pride of any household. Yes. So हमने उस तरह से शुरू किया. Then we went to IDBI. Okay. और उनके साथ हमने एक agreement किया कि why can't we get IDBI loans for our manufacturing customers and give them a model of paying every month. So the first EMI in India was created by HCL. There was nothing called EMI then. But globally होता था. Globally थोड़ा बहुत होता था, but हमने तो इंडिया में शुरू किया. We were pioneers. That's how we started. So we said, instead of spending so much, this is what you pay per month. So that's how you open the market. You create market. I think यहाँ पे एक बड़ा important point आपने बोला कि मिथ्स को बस्ट करना है. लेकिन मिथ्स बस्ट करने से पहले मिथ पता तो हो. रिसर्च करनी चाहिए. तो उसमें आजकल हम देखते हैं कि एक टाइम के बाद जब एक आजकल जो कंपनियां सेटअप हो रही हैं, और मैं बार बार इस चीज़ को रेफर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो मिशन है या थीम है वो ये है कि जो लेगेसी कंपनीज हैं उन्होंने क्या चीज़ें ठीक करी जिसकी वजह से वो लेगेसी क्रिएट कर पाए. और अगर आज जो कंपनियां आज भाई इट्स मैच्योर्ड ब्रेन, आजकल के बच्चे जेन जी और सारे रिसोर्सेज हैं, तो वो और बड़ी लेगेसीज कर सकते हैं, लेकिन जो गैप्स हैं उनको फिल कर लें. करेक्ट. तो आजकल जो लोग आ रहे हैं वो एक स्टेज के बाद बैकफुट पे चले जाते हैं, कस्टमर से कनेक्ट छोड़ देते हैं. तो भाई वो मेरी टीम, मेरी स्केल, मेरा ये मैनेजर, वो मैनेजर समझेगा. तो जो कस्टमर की पल्स है, जिसको सुन के आप चेंजेस कर रहे थे या स्कीम्स इनोवेट कर रहे थे और बोल्ड स्टेप्स ले रहे थे फुल पेज ऐड की, इवन इन अ न्यू मार्केट. एंड वी डिडंट हैव द मनी टू पुट दैट. एंड यू वर टेकिंग लार्ज रिस्क. यस. बेसिस ऑन योर कन्विक्शन. करेक्ट. बिकॉज यू वर सो क्लोज टू द कस्टमर एंड यू वर रीडिंग कि भाई ये कस्टमर चाहता क्या है, इसकी कमी क्या है, इसका पेन पॉइंट क्या है. तो
आज के इकोसिस्टम में आपको ऐसा नज़र आ रहा है, कोई ऐसा पेन पॉइंट नज़र आ रहा है जिसमें कि एंटरप्रेन्योर जो हैं वो ग्राउंड से हट गए हैं, या आपको लगता है कि वो आज भी जुड़े हुए हैं? It's a mixed bag. It's a mixed bag. It's a mixed bag. It's not that it's the same for everyone. If you look at it, whoever goes away from the customer is not going to succeed. Is not good. मतलब ये चक्कर ही नहीं है, वो नहीं, उसको नहीं समझ आएगा. Because basic thing is कि customer की expectations keep growing. They don't stay static. So what you had done as market research 2 years ago is no longer valid. Is no longer valid. You need to see what are his expectations today. Correct. And that is where your employees have to play a huge role. They need to be taught that when they meet the customer, keep asking, okay, bhai, are we meeting your requirements or not? And do things like for example, very strongly we used to do customer satisfaction surveys. Correct. और हम customer satisfaction service के ऊपर बहुत depend करते थे. And what we created was a model which was unique in the industry. We would do this survey regularly, but every month, one of our service guys, head, will go and meet the customer and say, boss, आपका कंप्यूटर जो था, आप पहले सोचते थे कि ये बहुत डाउन हो जाता है, बार बार खराब हो जाता है. आप देखिए लास्ट 6 मंथ से आपका अप टाइम 100% है, आपका अप टाइम 98% है. कई बार कस्टमर को ही नहीं पता होता है कि नहीं पता होता था उनको. थर्ड कुछ लोगों से हवा आती थी कि अरे यार ये HCL का कंप्यूटर ठीक नहीं चल रहा है, DCM का बेटर है या इसका बेटर है. हम लोग ने उसको काट दिया बिल्कुल. हर महीने जाके हम उनको रिपोर्ट देते थे. तो उससे क्या होता था कि द कस्टमर्स वर वेरी definitely very positive because they knew that we are performing. And this is very critical in a B2B business especially. क्योंकि कस्टमर रिटेन्ड रहते हैं, फिर छोड़ के नहीं जाते. और ऐसा है कि when you are in a very competitive market and you are competition is global, you cannot afford to in any manner loosen up on this issue. Correct. Because they will catch you. And it's very important for you to stay ahead. So I've always made this statement to all salespeople. In an account, in a customer, you should lead, not follow. You should lead, not follow. तो आप अगर लीड करोगे तो आपको बिजनेस मिलेगा. अगर आप फॉलो करोगे और जो भी आपका कंपेटिटर आके कुछ भी बोल जाता है, चला जाता है, फिर देना यू रिस्पॉन्ड टू हिम, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा. यू शुड बी प्लांटिंग द पॉइंट्स फॉर द कंपेटिटर टू रिस्पॉन्ड, कि वो आपको फॉलो करे. सो हम एक क्वेश्चन पूछते थे अपने सेल्समैन से, डू यू लाइक बैटिंग और फील्डिंग, और बैटिंग और बॉलिंग. 99% of people used to say batting. So then one guy said, I like bowling. मैंने कहा बताओ why you like bowling? He said, I like bowling. ऐसा नहीं है. मैंने कहा जवाब दो. कोई रीजन होगा. हाँ, कोई रीजन होगा. So he couldn't give a proper answer. अच्छा. So then I would tell them, look, the difference between batting and bowling is that in bowling you can set the field. So if you can set the field, the fellow who's the batter has to respond. Respond to your field and yes, ball. So this is the strategy by which you win deals. You go and set the field, let the competitor respond. That's a very good example. And India के वर्ल्ड कप मैच में हमने देखा. बिल्कुल यही हुआ. कि they controlled the field. They set the field. They set the field. They set the narrative. They knew the weakness of every batsman. Correct. And they set the field. Played them accordingly. Yes. अगर कोई पीछे मार रहा है तो पीछे 3 लोग खड़े कर रहे हैं. हाँ बिल्कुल सब पता था उनको. So this is what it is. It gives you phenomenal benefit. When you go into an account and you know what to do, it gives you phenomenal benefit. तो आपने शुरुआत तो हार्डवेयर से करी और बहुत ही जल्द सॉफ्टवेयर की तरफ मूव कर गए. और that became a massive power engine as well. You see, what happened was that somewhere around 19 when there was this Janata government, and जनता पार्टी मंडल टाइम उसके बाद तो उन्होंने जाके हमारी ट्रेजरी को तो खत्म कर दिया था. अच्छा. हमारे पास तो कंट्री में इंपोर्ट करने के लिए पैसे ही नहीं थे. अच्छा. वी हैड 1 week ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लेफ्ट. And we as a hardware company were completely dependent on imports. Correct.
सो वी देन रियलाइज कि भाई हमें एकदम इम्पोर्ट बेस पे नहीं रहना चाहिए, हमको एक्सपोर्ट में भी जाना चाहिए. Oh, that situation led you to think. That led us to think. Then we did something interesting. We formed a joint venture with Hewlett Packard. अच्छा. And we said कि चलो joint venture के चक्कर में हमको investment आ जाएगी. We'll sell part of our equity. पैसा आ जाएगा. And then we will create the business around that. Okay. So that was a strategy that we used. Okay. But as we started working with Hewlett Packard, they said कि भैया आप अपना प्रोडक्ट इतने सारे डिजाइन कर रहे हो, आपकी इतनी बड़ी भारी R&D है, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है. हम तो आपको पूरा प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो आप R&D क्यों चला रहे हो? तो हमने बोला देखो भाई, हम पीसी की R&D तो जरूर चलाएंगे, बाकी हम बंद कर सकते हैं अगर आप चाहते हो तो. बाकी मतलब पीसी के अलावा जो मिनी कंप्यूटर्स थे, हायर एंड प्रोडक्ट्स थे, सर्वर्स थे, उसकी हम लोग R&D कर रहे थे. हमने वी हैड क्रिएटेड मल्टी प्रोसेसर यूनिक्स मशीन्स व्हिच वर अनबीटेबल इन द वर्ल्ड. राइट. सो दे सेड कि भाई इसको तो आप बंद करो. तो जब उन्होंने बोला बंद करो तो हमको एक अपॉर्चुनिटी दिखी. हमने कहा ठीक है, हम इसको बंद करते हैं, पर इसको पूरा का पूरा बिजनेस हम निकाल लेते हैं यहाँ से. तो हमको एक अपॉर्चुनिटी दिखी, क्योंकि हमने जब अमेरिका गए थे, हमने एक सेटअप किया था वहाँ पर, तो हमको पता चला कि वहाँ के जो R&D थे, उसमें जो जिस तरह के R&D इंजीनियर्स और लोग चाहिए थे, उनकी कमी थी वहाँ पर. सो हमने जाके कुछ अपने बंदे लगा दिए वहाँ कि भाई आप जाके उनके R&D में काम करो. Then we discovered that it's a great business. That they didn't know, they didn't have this kind of capability. It's again about Mind India in some manner. Correct. So हमने उसको हमने एक स्ट्रेटजी बनाई कि अब इस पूरी R&D को निकाल के एक नई कंपनी बनाते हैं. And this company's job will be exporting R&D and engineering services. Okay. Nobody else was doing it at that time. Nobody. We were the first. Okay. In the country. So हमने engineering R&D की कंपनी बना दी. उसका नाम हमने HCL Technologies रख दिया, क्योंकि हम तो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे थे. करेक्ट. उस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट से हमारी सॉफ्टवेयर बिजनेस शुरू हुई. और उसको हम लोग वी वेंट फॉर अ लिस्टिंग ऑफ दैट कंपनी इन ईयर 2000. Okay. But when we were going for a listing for that company, we were still not big enough. So we created newer strategies to actually grow the software business. So we said that only when we have enough money, we'll be able to grow the software business. So going for a listing was very important, because then we'll get the money to invest in M&A. कि हम किसी कंपनी को खरीदेंगे, 2-4 कंपनी को खरीदेंगे, 10 कंपनी को खरीदेंगे. वो हमारी स्ट्रैटेजी बनी, और उसके बेसिस पे हमने सॉफ्टवेयर बिजनेस को ग्रो किया. और वी स्टार्टेड टू वर्क ऑन सॉफ्टवेयर बिजनेस इन अ मच बिगर वे, बिकॉज वी हैड सफर्ड वंस जब हमारे इंपोर्ट्स नहीं आ रहे थे. तो हमने ये सिचुएशन अब नहीं आनी चाहिए, दोबारा नहीं. इस प्रॉब्लम सर्वाइवल इशू. सो सॉफ्टवेयर वहां से शुरू हुआ, और लिस्टिंग के बाद बड़ा बेनिफिट हमें ये मिला कि हमारे पास काफी फंड्स आ गए, उसको हम लेवरेज कर सकते थे. करेक्ट. ठीक है. सो बाय बोरोइंग एंड लेवरेजिंग दिस मनी वी कुड बाय कंपनी. सो वी बॉट I think 12-13 software companies. After and that. I still remember that we bought a very large $800 million company in UK. Okay. Which really changed our, Which company was it? It was a SAP services company. Okay. It was the largest in Europe. Okay. So we bought that company. And that was a very interesting buying. Okay. The buying was that this company, 2 companies were vying for buying this company, Infosys and HCL. तो by the time हमारा बिड जा चुका था, Infosys का बिड चला गया, Infosys का बिड एक्सेप्ट हो गया. Okay. So this company was no longer with us. And I remember we were sitting in Beijing Olympics and this whole thing was going on. So that was 2008. Yeah. And then Shiv Nadar said, Ajay, let me do something different. So he wouldn't tell me what he was doing, because he was running the software business, I was running the hardware business. So he says, let me think about it, what I should do.
he decided to outbid Infosys. Okay. We outbid Infosys and won that. Wow. After they had closed the offer. उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लिया था इंडिया में. Infosys ने. They had announced this. That is interesting. And they were also listed company, and this would have gone all in the market. It is so interesting that we had the guts to do these things. And you know, you will constantly find this in HCL. कि हमारे यहाँ people have the guts to do things differently. And this is something that we encourage right through. All our employees, everybody, they were risk takers. They were risk takers. And each of our salespeople were entrepreneurs. और मुझे ये चीज अच्छे से ध्यान है, आपने HCL Comnet में भी पहले थे जो VSAT एजुकेशन या we were the first to get into EdSet के लिए. Yeah, we didn't know what a satellite business was. We had no idea. Yeah. So one of our very senior smart guys, Vineet Nair, came to. He was wanting to leave. So I was in Bombay then. I said, "Tum Vineet, tum to itne badhiya, you've done so well in the company." And you know, in our company there should be a cadre called senior management trainees, and these guys were the pick of the lot. Yes. So Vineet को बोला, मैंने बोला तू तो इतना बढ़िया बंदा है यार, मैं तेरे को कहीं नहीं जाने दूंगा. So I came back to Delhi. I had a chat with Shiv Nadar and I said, look, इसको नहीं जाने देना, बहुत अच्छा बंदा है. So then Shiv said कि ठीक है, उसको मेरे पास भेज दो. So I told Vineet, please go meet him. Vineet was so bright. He came up with this whole idea कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है. और उस टाइम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाज टू बी फॉर्म्ड. करेक्ट. सो उसने बोला सबको कि देखो हमारे पास कैपेबिलिटी तो नहीं है, पर वी शुड गो एंड बिड फॉर दिस, एंड वी शुड बी द bandwidth for satellite supplier to satellite supplier to connectivity supplier to national stock exchange. So all the capability of hardware, networking, etc. was sitting in my company. So he said, "Ke Ajay, all this capability sits here. Can you give me a team that I can put together, right, to create the bid?" Correct. So lots of our people, created the bid, and then he went and signed up with a Israeli company for technology. Okay. And that the biggest challenge those days was that the particular bandwidth that was the particular frequency that was required was not available. So he got the Israeli company to change it for India in their hardware. And that's how we got the deal, because we actually could meet all the requirements of the government. Right. And those days, satellite was not an open market. So government was very particular that इसी बैंड में हम आपको देंगे. Correct. तो हमने वो कर लिया. And we had again we bid into it not knowing the business. And you learned it. And we got the deal and we learned the business. Right. And so these are the kind of risks that company has always taken. That's why we've been very successful. That you tend to be very bold. Boldness is really the second name of HCL. Absolutely. I mean, very, very evident जो आपकी बातें मैं सुन रहा हूँ. और इसको जो आपने 2-3 जगह बात की और कंपटीशन को लेके, हमारे यहाँ एजुकेशन में क्या कहते हैं कि एक टीचर अच्छा टीचर बनता है अच्छे बच्चे से, क्योंकि वो उसको तंग करता है, क्वेश्चन पूछता है, जवाब नहीं दे सकता, उसकी जान के पीछे पड़ जाता है कि मेरा जब तक जवाब नहीं मिलेगा और अगर आपने गलत पढ़ा है तो मैं आपको वहीं पकड़ लूंगा. करेक्ट. तो सिमिलरली कहीं एक ये भी रहता है कि भी अगर आप एक अच्छी कंपनी बन रहे हैं तो वो आप अपने कंपैरेटिव इकोसिस्टम का भी उसमें हाथ रहता है कि वो आपको पुश कर रहे हैं. बिल्कुल. कि भाई हम आपसे आगे निकल जाएंगे. तो आपका कंपटीशन को लेके क्या व्यू है? मतलब हाउ इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट रोल इट प्लेड इन द सक्सेस ऑफ HCL? You are so right. Without competition, you cannot grow. Market grows when there is competition. Correct. पाई बड़ा होता है. Everybody is going and saying. So we should welcome competition. कंप्यूटर ले लो. 10 लोग बोल रहे हैं. पहले 2 लोग थे, फिर 5 थे, फिर 10 हैं, फिर 15 हैं.
So everybody is going to tell the customer कि तुम कंप्यूटर ले लो. उससे क्या फायदा होता है कि मार्केट बढ़ती जाती है, मार्केट एजुकेट भी होती है, एजुकेट भी होती है. So उसके बहुत फायदा होता है. तो when we completed I think 25 years of HCL, okay, I created a theme. Okay. 2001 में 2001 में था, कब था पता मेरे को याद नहीं. 76 से हाँ 2001. So उन दिनों हमने एक कैंपेन शुरू किया कि भाई इट्स कंपटीशन दैट हेल्प क्रिएट HCL. अच्छा, कैंपेन लाइक पब्लिक कैंपेन, a campaign for the show. अच्छा. And we actually had two different musicians come and perform competing with each other. You know, बोलते हैं ना कि इसको क्या बोलते हैं, जुगलबंदी. हाँ. तो हमने पूरी जुगलबंदी करवाई. अच्छा. और हमने बोला competition is what created HCL. And that's really what it is true. तो लोग जो कंपटीशन से आजकल घबरा जाते हैं और प्राइस गिराने लगते हैं और 100 तरह की एक अननेचुरल ग्रोथ की तरफ या अननेचुरल स्ट्रेटजीज की तरफ चले जाते हैं. तो दे शुड ट्रीट competition as a blessing and learn from them. Yes. And increase their capability and push their envelope. That's correct. कि भाई हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने आप को दूसरे से आगे बढ़ना है. तो इनफैक्ट मैं अभी आपके आने से पहले ये डिस्कशन कर रहा था कि आजकल की जो जनरेशन है, जनरेशन Z, तो उनके दिमाग में ये फियर बैठा है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर जाएगा. तो वो उस डर में वो करे जा रहे हैं और एक रेस में घूम रहे हैं. तो मेरे से पूछा कि भाई इस रेस से कैसे बाहर निकले. मैंने कहा ऑर्बिट ही चेंज कर लो. बस बिल्कुल. उनको उसको घूमने दो वहीं रहने. आपने अपना ऑर्बिट चेंज कर लिया तो आप तो ऊपर पहुंच गए. ऊपर चले जाओ. आपने अपना ऑर्बिट, जैसे पुराने जमाने में क्या होता था भाई, लोग, मैं भी हाथ से लड़ रहा हूँ, आप भी हाथ से लड़ रहे हो. गेम कब चेंज हुई? जब आपके पास तलवार आ गई. बिल्कुल. तो अब आपके पास हाथ है, मेरे पास तलवार है, तो आई एम ऑलवेज बेटर. जब आपके पास तलवार आई तो मैं बंदूक पे चला गया. करेक्ट. यू ऑलवेज हैव टू स्टे अहेड. यू हैव टू कीप चेंजिंग योर ऑर्बिट. मतलब आज न्यूक्लियर वेपन और केमिकल वेपन, मतलब गेम्स चेंज होती जा रही है. That's right. तो कंपटीशन में इज देयर एनीवन व्हिच HCL और योर टीम एज फाउंडर्स हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू कि भाई ये जो लोग हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं और ये हमें सिखाते हैं और हमें इनकी कुछ प्रैक्टिसेस को, बेस्ट प्रैक्टिसेस को एम्यूलेट करना है. तो एनी नेम दैट कम्स टू योर माइंड दैट यू रिस्पेक्ट? आई थिंक वी ओनली रिस्पेक्टेड HCL. वो तो बाय हार्ट वी डू दैट, बट सबसे ज्यादा कंपटीशन में देखिए ऐसा है कि HCL में डेफिनेटली वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम अदर्स. ओके. व्हेन वी फॉर्म्ड अ जॉइंट वेंचर विद ह्यूलेट पैकर्ड, HP के साथ, at that time HP had only 100 computers in India. They had been in India with a distributor for last 15 years. तो हमने उनको बोला ये 100 computers तो बहुत ही कम है. So we will change the ball game. Okay. और हम आपका प्रोडक्ट इंडिया में बनाएंगे. और we have such a large reach in the country that के 100 तो हम लोग आराम से एक साल के पहले ही बेच लेंगे. Okay, so all that we created with HP. HP was good at certain areas. They were fantastic on quality. They were fantastic on engineering. They were fantastic on service delivery. So, but they were not as good in sales and marketing as HCL. So, there used to be a joke that if you actually took a Japanese food जिसमें कच्चा फिश खिलाते हैं लोग, तो HP से सुशी वगैरह, सुशी, तो इफ यू आस्क HP के ये सुशी होता क्या है, वो बोलेंगे कच्चा फिश. अच्छा. इफ HCL से पूछेंगे तो 10 लाइन में डिस्क्राइब करके कितना फैंटास्टिक है ये फिश. That was the difference between sales and marketing of HCL and HP. So what we did was that when we started out, we asked them to send some top people from quality, from engineering, from manufacturing,
and we learnt from them. And then we did something very interesting. One day we decided that हमारे कंपनी में पैशन बहुत है, बट प्रोसेस की कमी है. प्रोसेस की कमी है, और जब तक प्रोसेस नहीं होता तो क्वालिटी नहीं आती, रिपीटेबल क्वालिटी नहीं आती. सो वन डे वी CII की एक डेलीगेशन जा रही थी टू विजिट ऑल द टॉप Malcolm Baldrige winners. They are the top people in the world who have won this recognition for best quality, like Corning and all these companies. Correct. So what we did was that 6-7 of us founders got onto the plane and we went for this 1-week trip with CII. Okay. And we used to visit one Malcolm Baldrige award winner every day. It was a very tough job because every day you were in a different city. But every morning we would go to the location. Every night we will come and sit down. All of us will sit down and say, what was the learning from today? And we documented it. And at the end of that 7-day period, 6-day period, we really had learned a lot. And then we created a model in the company by which we taught everybody quality. And we brought in Crosby methodology to teach quality in the company. So our thinking was that just passion will not make you a global company. If you want to be a global company, you have to have passion and process both. But one thing we were very clear, we didn't want to be like Hewlett Packard. I don't want to say in a negative way, but in a positive way. Hewlett Packard was a very heavily process oriented company. Passion was low. हमने कहा हमारे यहाँ इस तरह से बना है कंपनी, इसमें पैशन और प्रोसेस बराबर का होना चाहिए, साथ साथ चले. उससे हम एक ग्लोबल कंपनी बनाएंगे. उस पैशन से हम ग्रो करेंगे, बट प्रोसेस के बेस पे हम ग्रो कर लेंगे. तो क्वालिटी और प्रोसेस जो है वो बहुत क्रिटिकल है. सो इफ व्हेन वी वेंट इनटू सॉफ्टवेयर, वी हैड टू टेक सर्टिफिकेशंस फॉर एवरी पीस दैट वी वर डूइंग. सो SCI level 4, SCI level 5. Unless you had that, your customers are not willing to buy from you. So this started our quality journey, and that helped in the software business quite a lot. तो इतना सब कुछ आप कर रहे थे, and 24 घंटे भी कम पड़ते होंगे. बिल्कुल कम पड़ते थे. मैंने कभी गोल्फ नहीं सीखा. टाइम ही नहीं था. मेरे सारे दोस्त बोलते तेरे को गोल्फ नहीं आता, बड़ा इडियट है. मैं क्या करूं, मेरे पास कभी टाइम ही नहीं था. तो आपकी अगर फैमिली साइड पे देखें, योर स्पाउस, योर चिल्ड्रन, क्लोज फैमिली मेंबर्स, तो डिड दे मिस यू नॉट बीइंग देयर? ऑफ कोर्स दे डिड. So how would you balance, or are you balancing it now? You see, one of the things that I definitely did was that over the weekends, I used to spend a lot of time with the family. Okay. So both my boys, I would put them in a car and we would go to a bookshop. उन दिनों इंटरनेट होता नहीं था, तो हमने कहा चलो बुक्स का बड़ा हम लोग के यहाँ हमारे फैमिली में बुक्स का बहुत वो है कि सब लोग बुक्स पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं. तो I used to take them and we would buy books for them every Sunday. Then I'll take them to McDonald's, we'll pick up some fries and we'll all come back home very happy. Right. So this used to be my standard Sunday thing. Sunday outing. उसके beyond मैं कुछ नहीं कर सकता था. Because every day I would come late. And by the time I came home, they were already asleep in a lot of ways. But definitely holidays, we would go out. And Sundays we would spend together. And that's how one managed. That was to my mind a different era. अब लोगों की expectation बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि ये this whole balancing that you need to work-life balance, बहुत लोग पूछते हैं मेरे से इसके बारे में. मैं हर सबको यही बोलता हूँ कि देखिए, work-life balance is what is in your mind. You need to take a decision. What is your work-life balance? Do you want to spend 80% on work and 20% on that rest? is your balance. It's your balance. There's no standard recipe for it. What is good for you may not be good for somebody else. But I sincerely believe that this whole thinking that
if you're not working hard, if you need to just keep on thinking family and life and this and that, I don't think you can succeed. I don't think you can succeed. You But need to आजकल की जनरेशन ऐसा बहुत सोचती है, जनरेशन यही मांग रही है. मतलब पहले तो 5 days वर्क पे आए हम लोग, 4 days पे, आज वो 3 to 4 कहते हैं. अरे बॉस आप देखो, I always tell people, यूरोप को देख लो, why their economy in doldrums. काम ही नहीं करना चाहते, कोई काम नहीं करता. अभी नारायण मूर्ति ने बोल दिया 70 hours of working. वो पूरा हल्ला मच गया उस पे बहुत हल्ला मच गया. But there's nothing wrong with it. इस देश को तो चाहिए. देखिए भाई, हमको अगर इस कंट्री को मिडिल इनकम ट्रैप से निकालना है और हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, वी मस्ट वर्क हार्डर देन एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड. दैट्स आवर ओनली वे वी कैन सक्सीड. Let these characters work for 4 days. We should work 36 days. And take over them. Take them over. Within next 30 days, 30 years, we should be a developed country. Because we need to grow in a different way. See, एक तो linear growth है. जी. Linear growth में हम कहाँ पहुँचेंगे बताइए? वो तो ऑलरेडी इतना आगे, कहाँ पहुँचेंगे? नहीं पहुँचेंगे. तो हमें तो exponential ढूंढना है. और उसके लिए मेहनत चाहिए. उसके लिए मेहनत चाहिए. उसके लिए innovation चाहिए. उसके लिए strategies चाहिए. उसके लिए एक कैंपेन चाहिए जिसमें हम सोचे कि हम किस एरिया में वर्ल्ड लीडर्स बन सकते हैं. उसकी थिंकिंग हमें अभी करनी है कि अगले 30 साल में हमने क्या बनना है. तो आइदर वी टेक अ व्यू दैट वील बी लाइक थाईलैंड, और वील हैव टू टेक अ व्यू दैट विल बी अ ब्रेकआउट नेशन लाइक कोरिया, एंड देन ओनली कैन वी रियली गो अहेड. सो यू नो दिस, इट इज ऑल अबाउट द एस्पिरेशन ऑफ पीपल. इफ यू do not have the aspiration, you will keep thinking कि 3 दिन में काम हमारा हो जाएगा, 4 दिन में हमारा काम हो जाएगा. You know, these are all very temporary solutions to the problem. You need to look far ahead and say, what do I need to achieve for me and my company? And what do I need to achieve for my country? Both are very important. If we do not think that way, then we'll keep talking about work-life balance and ये and वो and ये सब नई चीजें हैं जो मुझे नहीं समझ आती. क्योंकि मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर हम 4 दिन काम करेंगे या 5 दिन काम करेंगे और फिर लंच के टाइम 2.5 घंटे हम बैठ के कॉफी पियेंगे. आप देखो इटली में जाओ, सब लोग बाहर बैठे होते हैं, छोटी छोटी टेबल्स पे कॉफी पी रहे होते हैं, 1:30 बजे से 4 बजे तक कुछ काम नहीं करते. उसके बाद जाके काम. आपको पता है यूरोप में सर्टेन फैक्ट्रीज क्लोज ड्यूरिंग अगस्त. कोई काम ही नहीं करता. कोई काम ही नहीं करता. मेरे को तो सबसे बड़ा सरप्राइज ये हुआ कि फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं. ये तो बड़ी अजीब बात है. अच्छा, लोगों ने एडजस्ट भी कर लिया कि भाई अगस्त आ गया, अब तो सामान मिलेगा ही नहीं. कच, बिल्कुल बिल्कुल. तो वो बाहर की कंट्रियों पे डिपेंडेंट है, जहां से सामान आ रहा है वहीं से काम चल रहा है. तो ये आप देख लीजिए, a lot of people look up to America. Why are they such a leader in the world? They work very hard. They work very hard. Very hard. Morning 7 o'clock they're in office. बिल्कुल. और एक चीज उनकी बड़ी चीज है कि उनका फोकस बहुत है वर्क पे. इनोवेशन इतना ज्यादा है. और आप मैं ताइवान जाता था, बहुत रेगुलरली जाता था. अभी भी मैं ताइवान से वापस आया हूँ. आई ऑलवेज नोटिस दैट द ताइवानीज आर लाइक इंडियंस. सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं, रात को 9 बजे तक काम करते हैं. मैंने आज तक ऐसी मीटिंग नहीं करी किसी भी जगह जो 8-9 बजे के पहले रात को खत्म हो. दे नेवर से कि मेरे को ड्रिंक करना है, ये करना है, वो करना है. कुछ नहीं, काम करना है. सो एक छोटी सी कंट्री है, उसमें they have become the 60% of the world semiconductor डिलीवरी कंट्री है. छोटी सी कंट्री है. मतलब चाइना उस पे आंख गड़ा के बैठा है इसीलिए. तो you know this is very critical for us as a country that we need to be thinking कि हमें आगे बढ़ना है. ये सोच कहाँ से रही है? मतलब क्या आपको क्या लगता है कि इसको बदला जा सकता है? ज्यादा शुरू हुई है जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ. कोविड टाइम से ज्यादा शुरू हुई है. इससे पहले नहीं था? नहीं थी. उसके पहले जरूर थी. लोग मेरे से आके जरूर पूछते थे. तो क्या हम प्री कोविड उस पे जा सकते हैं वापस या अभी नहीं? मुश्किल है. हमको जाना ही चाहिए. जाना पड़ेगा. क्योंकि अगर हम इस तरह के काम करेंगे ना तो हम लोग कैसे आगे जाएंगे? अब वो किसका है वो कैंपेन? वन ऑफ दोस रेंटल कंपनीज, हर्ट्स का है किसी का, कि वी वर्क हार्डर बिकॉज वी आर नंबर 2. Correct? We need to think like that. We need to work harder because we are number 20. Yeah, probably 200.
हम बड़े बड़े बातें करते हैं, हम 5 ट्रिलियन हो जाएंगे, थर्ड लार्जेस्ट हो जाएंगे, दैट्स नॉट गुड इनफ, वी नीड टू ग्रो फास्टर। बट वो जीडीपी की भी लोग बात करते हैं, वो एब्सोल्यूट नंबर में करते हैं, अगर आप उसको गिरा के पर कैपिटा करो फिर तो हम कहीं नहीं है। वी आर अ वेरी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वी आर अ मिडिल इनकम कंपनी है। 60% लोग आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो पुरानी बातों में हम बैठ गए हैं। तो हमें ये सब बहुत चेंज करना है, और इसको चेंज करने के लिए बड़ी रिक्वायरमेंट है कि हम कुछ करें। अब आप देखिए सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर सर्विसेज में हम लोग घुसे, वी डिड वेरी वेल, बट उसकी मार्जिन गिरने लगी। अब तो देखिए क्या मार्जिन चली गई। बट अगर आप देखिए दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड iSpirit इन बैंगलोर, दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन मेकिंग इंडिया सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नेशन। उससे क्या हुआ, जो डीपीआई क्रिएट हुआ है अब, इट्स अ वर्ल्ड बीटर। यस, करेक्ट, दैट इज व्हाई आप शुरू में प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। सो इससे एक बड़ी लर्निंग मिलती है कि सिर्फ सर्विसेज में अगर हम रह जाएंगे एज अ कंट्री, हमारे को मार्जिन नहीं कभी भी मिलेगा। अगर आप देखिए किसी भी प्रोडक्ट में देख लीजिए, आप वी आर द लार्जेस्ट डायमंड कटिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। आई मीन व्हाट मार्जिन्स आर देयर इन दैट बिजनेस? नथिंग। हु मेक्स द मनी? Chinese make the money because they make the machines for cutting the diamonds. Yeah? Correct. Or the ones who are selling in Antwerp. हाँ, Apple makes money when he sells it under his brand. हमारे को तो वो $3 देता है. Correct. For a $600 product. That's all he gives me. Correct. As a country. So if we don't move from services to product in everything that we look and do, we cannot be successful. Correct. You know, so it's very critical that as a country we work very hard, and our country we think as a product nation, we should create products of our own, create IP of our own, create brands of our own. तो ये सोच एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लोगों की फैमिलीज या जिन ऑफिसेस में वो काम कर रहे हैं वहाँ की जिम्मेदारी है। तो ये कहाँ से, मतलब it's a जिम्मेदारी of India as the way I look at it. But government should be looking at creating policies that are conducive to create products. Progressive towards this. Yes. It's very important. अब आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग में हर तरह के PLI आ गए हैं. Production Linked Incentive Scheme. Correct. It focuses totally on revenue. Correct. It doesn't focus on value addition. Correct. It doesn't focus on design. टेलीकॉम में उन्होंने चेंज कर दिया इसको. टेलीकॉम में उन्होंने बोला अगर आप डिजाइन करोगे तो आपको ज्यादा मिलेगा. That's the way it should be. तो आपने ये प्रोडक्ट वाली जर्नी अपनी कंपनी में की, तो उसमें कोई ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आपकी लाइफ में प्रोफेशनॉली एंड पर्सनली दैट रियली रीडिफाइंड कि भाई अब हम ऐसे काम कर रहे थे, ये इवेंट हो गया, जैसे आपने 91 की बात करी जब फॉरेक्स खत्म हो गया था, तो ऐसे कौन से टर्निंग पॉइंट और क्या टर्निंग पॉइंट की मतलब क्या अहमियत है किसी भी एंटरप्रेन्योर की जर्नी में? देखिए, one of the things that I realized quite early in our journey is that जब आपके पास एक कंपनी है उसमें मल्टीपल पोर्टफोलियोज क्रिएट करिए, एक पे नहीं डिपेंड करिए. एक पे नहीं डिपेंड करता. तो हम पहले तो सिर्फ हार्डवेयर कंपनी होते थे जी. उसके बाद हमने ऑफिस ऑटोमेशन शुरू किया जी. उसके बाद हमने बहुत इस तरह के 3 या 4 या 5 बिजनेसेस हमने इस तरह से शुरू किए. Each of them became a profit center. Now, when I was running this portfolio of 6 pieces, I used to make sure that there is a deep balance between one and the other. तो अगर इस क्वार्टर में मेरे को पता है कि यार पीसी में पैसा नहीं बनने वाला, so I would go and focus on the other 3 guys and say, बॉस इतना प्रॉफिट हमको और चाहिए. तो उससे क्या होता है कि प्रॉफिट पूल्स आप क्रिएट करते हो अपनी कंपनी में जी, और वो प्रॉफिट पूल्स के बेसिस पे आप कंपनी को प्रॉफिटेबल बना सकते हो. सो यू वर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स. यस, आई थिंक एवरीवेयर वी थॉट प्रोडक्ट्स. इंटरेस्टिंग. सर, इतनी सक्सेस के बाद एक कई बार दिमाग में आता है सोसाइटी को वापस देना है, एंड आई नो कि आपने बहुत एक्टिवली आप फिलैंथ्रोपी भी करते हैं, तो वहाँ पे कई बार लोग, मैंने क्या सुना है कि वेट करते हैं कि भाई एक वेल्थ इवेंट होगा तो शुरू करेंगे, जब जॉब से रिटायर हो जाएंगे तो शुरू करेंगे, या एक कोई माइलस्टोन आएगा तो शुरू करेंगे, या
ज़िंदगी में कोई ऐसा इवेंट हो जाएगा तो शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है कि फिलैंथ्रोपी या सोसाइटी जिसने आपको इतना कुछ दिया है उसको वापस देने का कोई समय नहीं होता, कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो आपकी जर्नी फिलैंथ्रोपी में कैसी रही, और आज के इकोसिस्टम में आपको लोग कैसे लगते हैं कि भाई वो क्या उनके दिल खुले हैं, क्या उनके विजन्स खुले हैं? देखिए, इंडिया में फिलैंथ्रोपी हैज़ बीन अराउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम जी। and there were large groups like Birlas etc. that were very clear about philanthropy. But बड़ा लिमिटेड थे लोग फिलैंथ्रोपी में, बहुत लिमिटेड थे। जब तक टेक्नोलॉजी बिजनेस शुरू हुई और ई कॉमर्स बिजनेस शुरू हुई, उसके बाद उसने बहुत सारे लोग क्रिएट किए जो आज कमाते हैं और आज देना चाहते हैं। पुराने जमाने में हम लोग सोचते थे, जैसे आपने बोला कि भाई आज कमाते हैं 20 साल बाद देंगे, बाबूजी देंगे, हाँ वो कुछ बाद की बात है, आज कुछ नहीं करना। अब नया थॉट शुरू हो गया है, तो वो दिख रहा है आपको? दिख रहा, बड़ा क्लियरली दिख रहा है मुझे। जैसे आप और मैं दोनों नज इंस्टीट्यूट के मेंबर्स हैं जी। अगर आप देखिए उनके जो डोनर्स हैं उसमें बड़े क्लियरली पता चलता है यंग लोग हैं इतने सारे जी। मैं तो बड़ा आउटलायर हूं वहां पर। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है जी। और दूसरा, giving back is not just about money. It is also giving back to the country. Correct. Right? So, for the last 20 odd years, I have dedicated my life towards promoting electronics. So, I have been in every committee of the government and I've always said, India must be a big electronics country. But unfortunately, every policy that the government made in the last 30 years, 40 years was not good enough. Because there were so many disability factors of India in a market which is very competitive and very margin oriented. So now last 4 to 5 years, scale has come, but still we are not at the level of making products and designing products and creating Indian brands. That's what we need to do. So I'm still at it. I have now gone to the government, given them a proposal to say, let's make India a soft hardware product nation. And I've given it to various departments and they've agreed to set up a task force of 10 industry company people to write a paper on how we should make India a hardware product. Right. So that's the way it is. And then suddenly 2-3 weeks ago, the government sent me a letter saying that they would like to bring me into, into Niti Aayog to contribute to the country. So I'm very happy that now I'm able to sit at inside a body in some manners where I can influence how to increase manufacturing. So इतना आपका डाइवर्स और रिच एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो भारत की एक जनता है, क्योंकि जोश टॉक्स के थ्रू हम ऐसे ऐसे हिंदुस्तान के कोने में पहुँचते हैं, उन बच्चों तक, उन प्रोफेशनल्स तक जो कहीं जॉब कर रहे हैं, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी सोच की वजह से लिमिटेड हैं। तो उनके लिए कोई 2 शब्द आपके कि कैसे वो अपने उन छोटे एफर्ट से एक बड़ी लेगेसी क्रिएट करें, किस सोच की तरह वो चले, क्या उनके लिए एक मैसेज आप देना चाहेंगे? हर छोटी चीज कभी न कभी बड़ी हो जाती है जी। तो यही सोचना चाहिए कि हम शुरू अभी कर रहे हैं, हम बड़े बनेंगे। एक एस्पिरेशन होना चाहिए लोगों में। एंड one thing which I have written in my book also, that I learned this from my teacher in Michigan University, and he was Dr. C.K. Prahlad. Oh, the great C.K. Prahlad. And he used to teach. He used to say, A is greater than R. What does that mean? If you have the aspiration, A stands for aspiration, R stands for resources. So if you have the aspiration, resources will happen. वो आ जाएंगे। तो हमारी कंपनी की यही कहानी है। हमारे पास तो ना पैसे थे, ना लोग थे, कुछ भी नहीं था। 1.86 लाख से शुरू करके now we are sitting at a valuation of $45 billion. ऐसे तो नहीं होता ना। करेक्ट। रिसोर्सेज तो हमारे पास थे ही नहीं जी। तो यही मैं सब लोगों को बोलना चाहूंगा कि A is greater than R। आप उसको अपना फॉर्मूला बना लीजिए लाइफ में जी, कि आपके पास एस्पिरेशन इतनी ज्यादा होनी चाहिए जिससे रिसोर्सेज अपने आप बनेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ पुरानी यादों पे और स्टोरीज पे भी टच कर पाए और आई एम श्योर कि आपके मैसेज
भारत की जनता तक पहुंचेंगे और वो अपनी जो एक माइंड की लिमिटेशंस हैं उसको ब्रेक करके अपनी एस्पिरेशंस को बढ़ाएंगे और कुछ ना कुछ देश के लिए करके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच।